I want to explore options with you regarding what else Pakistan can copy from India, right? So, India historically have been competitive under Ganguly, Dravid. Uh, So so, but in the 2000s, India was competitive, but they weren't really crossing the line. Uh, Under Dhoni, they didn't really see much, change of luck under Dhoni. But under Virat Kohli, we saw a sudden change of fortunes for India. Initially, it was कि भाई Steve Smith or Warner नहीं है. They played a weak Australian team and they were able to beat them. But in the recent Test series against Australia, Australia had a really settled 11. I think Pat Cummins was the captain. Um, and India lost one test match by getting all out on 36. But to bounce back from that, they were able to change things around and really beat Australia in Australia, which, apart from England and South Africa, no other team has been able to do, which is quite an achievement. What I want to really understand is how does BCCI look into identifying players with regards to team dynamics? How does BCCI respond to players' skill levels? Who's suited for what condition? Some players in Pakistan team that are typically just for flat tracks. They can only perform in flat tracks. Um, but they're not better suited out in the overseas. Like for example, in Pakistan में Azhar Ali जो हैं, former Pakistan batsman, he was far better batsman outside of Pakistan versus when he played in Pakistan. He scored a double century in Australia. He had centuries in England and New Zealand. So and the West Indies. So what I really want to understand is how does BCCI approach these tours? Because these tours are not small tours. These are the tours where you are able to establish these dominance, really, with your performances. So what's the BCCI's mindset in that? I think they've had a long term vision, और उस विजन का मेन चीज ये है कि दे पिक द राइट टैलेंट. एंड अब तो इंडिया ने क्या कर दिया है कि फॉर सेना कंट्री टूर्स प्रैक्टिस गेम्स ही नहीं खेलते. So what they do is they have a tour which is a shadow tour जो वो before going into a test series उनका A team वहां travel करता है. जैसे अभी इंडिया का A team is in South Africa playing a series with South Africa A team, या उसके बाद आपस में भी इंटर मैच कुछ इंटर स्क्वाड गेम्स खेलेंगे. So things, देखो, going a little bit back, बैटिंग इंडिया के पास हमेशा था. प्रॉब्लम वाज बॉलिंग नहीं थी. Right. So whenever they competed in Australia or England or wherever, because they were able to put up runs. तो उसमें आप ड्रॉ का रार ले जाते हो, राइट, एंड आपकी बॉलिंग चल गई तो यू विल विन अगेन बिकॉज बैटिंग इज अबव पार या एट पार विद द अदर टीम. ऐसा चल रहा है. दिस इज द ट्रेंड इवन इफ यू लुक एनीवेयर बारिंग साउथ अफ्रीका जहां पे कि नहीं जीत पाए हैं टेस्ट सीरीज. एवरीवेयर एल्स दे मैनेज्ड टू वन अ टेस्ट सीरीज इन पास्ट 15 years, राइट. ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या करते हैं? ऑस्ट्रेलिया में इंडियन बैट्समैन हैव ऑलवेज लव प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया. मतलब सचिन ने 92 में पहले टूर में 100 मार दिया. साथ में रवि शास्त्री ने 200 मार दिया, राइट, विच टेल्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो रन्स आते रहते थे. एंड जो पहले भी हम थोड़ा एक दो बार सीरीज मिस हो गई बिकॉज वी डिड नॉट हैव बॉलिंग. और जहीर खान वाज इंजर्ड इन बोथ द टूर्स जब इंडिया जीते जीते रह गया, राइट. फिर आया धोनी का टेस्ट मैच कैप्टनसी वाला दौर और उसके अंदर एकदम फटे हाल थे हम विद एजिंग बैट्समैन. ना तो बैट्समैन रन बना पा रहे हैं एंड यू डोंट हैव क्विक बॉलर्स टू मेक इट वर्क. तो वो एकदम ही, मतलब वो उसकी जगह कोई भी होता ना, कोई कुछ नहीं कर पाता. वी वन द वर्ल्ड कप इन 2011 और इमीडिएटली सीरीज थी इंग्लैंड के साथ. 4-0 हारे, 5-0 हारे इनफैक्ट. एंड वी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, 4-0 वहां हारे. एंड दैट वाज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ धोनीज टेस्ट मैच करियर. लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था तो
ही केप्ट गोइंग ऑन चेंज। तो प्लानिंग तो उनकी पहले से थी कि भाई वी हैव टू परफॉर्म, तो बैट्समैन वो परफॉर्मिंग, ऐसा नहीं है बैट्समैन वो नॉट परफॉर्मिंग। रेवोल्यूशन आ गया जब बॉलर्स स्टार्टेड कमिंग, कि उनका क्वालिटी पेस अटैक बनना शुरू हो गया, एंड दैट स्टार्टेड विद विराट कोहली सेइंग कि बॉस आई नीड टू विन टेस्ट मैचेस। और फिर दे चेंज द पॉलिसी फ्रॉम 7-4 टू 6-5, कि हम 5 पूरे बॉलर खिलाएंगे और हार गए तो हार गए। एंड वहां से बिकॉज देयर बैट्समैन ऑलवेज हैड द कैपेबिलिटी टू स्कोर रन्स, राइट, उन्होंने एक बॉलर ऐड कर लिया। एंड अब लक कहें कि क्या कहें, यू हैव जडेजा एंड अश्विन इफ यू वांट टू प्ले टू स्पिनर्स हु आर रियली गुड विद द बैट, तो वो उनको हेल्प करते चला गया। आई वुड से क्रेडिट विजन का थोड़ा जाता है टू सचिन, गांगुली, लक्ष्मण एंड द्राविड, और ये पूरा जो इनका गैंग है, राइट, द फैब फाइव ऑफ इंडियन क्रिकेट वंस अपॉन अ टाइम, they have always been involved, right, with making sure कि बॉस हमको आगे क्या करना है। एंड एक चीज तो ये पक्का है कि इंटेंट टू विन अ सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया हैज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यू हैव ऑलरेडी हैड गुड बैट्समैन, आपको बॉलर्स बेटर मिल गए, और फिर आपको एक मतलब 30 मार खान कोच मिल गया इन टर्म्स ऑफ रवि शास्त्री, कि उसको ये पता था कि ही वॉज अ टैलेंट मैक्सिमाइजर इन हिज टाइम। Mm-hmm. उसको ये पता है कि टैलेंट मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, ठीक है, और उसने बहुत जल्दी अपना क्रिकेट भी छोड़ दिया। आई थिंक ही वाज फेयरली यंग व्हेन ही रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट बिकॉज ऑफ अ नी इशू और समथिंग लाइक दैट। सो व्हेन ही एंड द्राविड का जो कॉम्बो, इसका क्या बोलते हैं, कोहली का जो कोहली का। कॉम्बो बना है ना, कोहली का, दैट changed a lot of things। वो मतलब अलग मेंटालिटी हो गई टीम की। कोहली वाज अग्रेसिव, ही वाज अग्रेसिव, दे गॉट डिसेंट फास्ट बॉलर्स, एंड इंडिया वाज प्लेइंग बॉलर्स। टेस्ट मैचेस के लिए बॉलर्स को उन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी कि कोहली से पूछा कि हाउ डज ही बॉलर्स को क्या वो सपोर्ट करता है, कैसे उसने बॉलर्स बनाए, तो उसने कहा मैंने किसी को नहीं बनाया, ये सब खुद बने थे, और कई तो धोनी के टाइम से खेल रहे हैं। द ओनली थिंग ही डज इज जब वो हवाई जहाज में जाता है कहीं से, तो बिजनेस क्लास की सीट्स फास्ट बॉलर्स को मिलती है। तो उसने चेंज कर दिया माइंडसेट कि हाउ दे व्यू देयर फास्ट बॉलर्स, कि भाई उनको मुझे अच्छे से रखना है, क्योंकि टेस्ट मैच जीतना है तो 20 विकेट लेना पड़ेगा। और 20 विकेट मैं कैसे लूंगा, इफ माई बॉलर्स आर फीलिंग themselves। सो यू लुक एट शमी, यू लुक एट, अब तो मतलब बीच में ऐसा हो गया था कि दे हैड अबाउट 7-8 गुड फास्ट बॉलर्स, वर ऑल यू नो किसी को भी खिला लो आप टीम के अंदर, राइट, सो दैट हैज कंट्रीब्यूटेड। द ए टूर्स, सो टू आंसर योर क्वेश्चन, द ए टूर्स हैव कंट्रीब्यूटेड, कि शैडो टूर्स जो द्राविड ने शुरू कराया था एक्चुअली, कि जहां पे भी जाते हैं 1.5 महीना पहले उनका एक इंडिया ए का टीम जा रहा है टू प्ले 4 डे क्रिकेट या 3 डे गेम्स, उसके Dravid अंदर। was also the A team coach as well, यस right? यस यस। तो व्हेन ही बिकेम अंडर 19 कोच एंड ए टीम कोच, तो उसने बहुत सारे चेंजेस करे। उसने पहला चेंज तो ये करा कि अंडर 19 वर्ल्ड कप कोई लड़का दोबारा नहीं खेल सकता। आज रविंद्र जडेजा प्लेड 2 अंडर 19 वर्ल्ड कप्स, राइट, तो उसने कहा देयर इज नो पॉइंट, अगर तुम अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के भी दोबारा खेल रहे हो तो प्रोग्रेशन हुआ ही नहीं तुम्हारा, सो देयर इज नो पॉइंट प्लेइंग। तो उसने ये धीरे धीरे चीजें चेंज करी। एक्चुअली इन्होंने एक और चीज लेके आए थे टू लुक एट बॉलर्स हु चक। उन्होंने मेक श्योर किया कि भाई उसको क्लैम्प डाउन करें, कि हम ये करेंगे। दे एड वन मोर थिंग विच द्राविड एंड कुंबले टुगेदर एक्चुअली दे डिड, कि इन्होंने कहा कि हम एज के टूवर्ड्स हमको जाना है, कि जो गलत एज लिखवा के सब खेलते रहते थे ना, तो दे हैड अ क्रैकडाउन देयर एज वेल। तो उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे ना चेंजेस लाना शुरू कर दिया, कि भाई दिस इज हाउ वी वांट टू प्ले, एंड गोल्ड स्टैंडर्ड वाज ऑस्ट्रेलियन टीम एंड इंग्लिश टीम, हाउ दे यूज्ड टू गो अबाउट देयर थिंग्स। तो आई गेस दीज फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड। लेकिन कहीं ना कहीं यार दे हैव कंटिन्यूटी ऑफ प्लेयर्स। द प्लेयर्स डोंट गेट चॉप्ड एंड चेंज दैट मच इन टेस्ट क्रिकेट। प्लेयर की कंटिन्यूटी है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है उनका। ये अभी सीरीज जीते हैं तो कोहली उससे पहले खेला हुआ है सीरीज, राइट।
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं पिछले 4 साल में ये दूंगा इस बात को कि इनके जो प्लेयर आते हैं ना वो प्रिपेयर्ड होते हैं, दे आर रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। वॉशिंगटन जो हमारा लास्ट टेस्ट मैच है जो हम जीते हैं एट गाबा, टीम ही नहीं है, राइट? जो है सब चले गए, हमने नेट बॉलर्स को खिला दिया एंड नेट बॉलर्स हैव परफॉर्म्ड, राइट? वॉशिंगटन सुंदर क्या बोलते हैं, नेट बॉलर गया हुआ था एज एन ऑफ स्पिनर, ही डिड नॉट इवन बैट। लेकिन इतना आईपीएल का एक्सपोजर है, इतनी जगह खेलते हैं और डेज क्रिकेट बहुत खेलते हैं, बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास पे फोकस रहता है कि रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, इन सब का वैल्यू है आज की डेट में भी। और अब तो विद मीडिया वैल्यू और बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अब लोग प्रोडिक्शन शुरू कर देते हैं कि आईपीएल के ऑक्शन में कौन आएगा। उसके लिए क्या करेंगे, सैयद मुश्ताक अली देखेंगे, ठीक है, उसके बीच में विजय हजारे आ गया तो वो फॉलो करेंगे। तो इंडिया के डोमेस्टिक सर्किट को थोड़ा धीरे धीरे आईबॉल्स मिल रहे हैं, एंड ऑब्वियसली एक्सपीरियंस फ्रॉम आईपीएल हैज डन वंडर्स फॉर इंडियन क्रिकेट। मतलब हमको अभी T20 वर्ल्ड कप में आईपीएल खत्म कर देगा, हम नहीं जीतने वाले फॉर श्योर, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, सबकी प्रायोरिटी आईपीएल रहेगी और थके हाल फटे हाल पहुंचेंगे हम वर्ल्ड कप में, नो डाउट। बट आई मीन दैट इज द प्रायोरिटी। So I guess Indian cricket priority is test matches and then IPL and everything else. I think it's you can say something like that.